Hello students. So the next chapter that I'm going to start is the rat trap. So who is the writer? Writer is Selma Lagerlof. Okay. And why she has written this or why she is so famous, we will see further. See, the basic line under which the entire story, the entire fiction travels is essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. Means everyone is having some essential goodness in him or her. What we actually need to do is to touch that part only. When you will touch that part, proper love or care, when you will give proper love and care, then definitely the essential goodness will come out. Before starting this, let me tell you a very brief story. Perhaps in standard 10 I have reminded you regarding this. Those who know the answer, please text me. Once upon a time, what happened? A thief, he was out from a jail and he was wandering here and there. He was tired, and in evening he found temple to be a better place to sleep. So what he did, in the outskirts of temple he slept. We all know that it is a habit of saint, good saint. Please, I often do this in class under inverted comma, good saint. So it is an habit of good saint to help others. So what happened when the saint saw him sleeping? That person who was from prison, very tired. He was looking tired. So the saint gave his muffler to him, not muffler, rather shawl. And the color of the shawl was orange. We all know, gerua rang. And he simply kept the shawl over him and saint went on. Early morning, when the prisoner woke up, he found that shawl over him. He found his body covered with that shawl. So what he did, he woke up and covered his body with that shawl. Suddenly some people arrived and they thought that this man wearing this shawl is none other but a great saint. They greeted him as a saint, but he was a prisoner. Remember, they greeted him as a saint, but he was a prisoner. Now the question arrives in his mind, what shall I do? Do I need to tell them the reality, or shall I continue like this? If I'll tell them the reality, they are going to send me to prison. Okay, my life will be shattered again. And if I won't tell them the reality, means I'm going to live a very good life, because they are villagers. They have a lot of respect for me in their eyes. It means that they are going to provide me bread and butter for next few months. So the choice was hard. How he managed, from which story, from which novel this part is, it is your task to search. The chapter that we are going to read is little bit similar in this way. How? Let us see. So she is the author. Why she is so famous? Let me tell you from which country she belongs, that is another thing. But she is the first woman to win the Nobel Prize in Literature, which was awarded in 1909. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature. That's why she is very important. Okay? Let us move further. The Rat Trap by Selma Lagerlof. Main characters. The very first character in front of whom will come, that is rat trap seller. Now what is rat trap? Let me give you the picture. I hope that you understood that what is rat trap. This is rat trap.
So this is rat trap. We have seen it. So the person, the main protagonist, or you can say the central character of this prose fiction is the rat trap seller, जो इसको बेचता है. ठीक है. अब let us see some characteristics. क्या क्या उसके साथ problems हैं. Poverty stricken life, difficult circumstances. उसका क्या क्या है. बहुत poverty stricken life है, उसका circumstances अच्छा नहीं है. बेगिंग करता है, पेटी थेवरी करता है, छोटी मोटी चीज़ों को चोरी करता है. सेलिंग रैट ट्रैप ओकेजनली वेयर हिज मीन्स ऑफ, जहाँ से उसको थोड़ा पैसे वैसे मिल जाए. वो कैसे होता है, कभी चोरी करके, कभी भीख मांग के, और कभी रैट ट्रैप का वो सेल करके. मोरली नॉट अपराइट. अब ऑफकोर्स अगर वो चोरी कर रहा है तो मोरली बहुत ज़्यादा वो हाई नहीं होगा. उसके लिए मोरल वैल्यूज़ और सच्चाई और प्रिंसिपल ये सब मायने नहीं रखते. स्पेयर्स नॉट इवन हिज होस्ट. द ओल्ड क्रॉफ्टर चीट्स हिम ऑफ हिज 30 करोड़. अब वो जिसके घर में स्टे किया, व्हेन विल रीड द स्टोरी विल कम अक्रॉस दैट एपिसोड, कि वो जिसके घर में स्टे किया, जो उसको थोड़ा टाइम दिया, क्या मेरे घर में रहो, खाना दिया, वो उसके घर भी चोरी कर लिया. तो स्पेयर्स नॉट इवन हिज होस्ट. अपने होस्ट को भी, तो अपने होस्ट को भी नहीं छोड़ा. तो ये तो अंडरस्टूड है दैट मोरली ही इज़ नॉट वेरी अपराइट. टेक्स एडवांटेजेस ऑफ सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज़. उसको देखता है सिचुएशन अगर है तो उसका एडवांटेज उसको लेना आता है. बेसिक इनहेरेंट गुडनेस इन मैन इज़ ब्रॉट आउट इन हिम थ्रू द काइंडनेस ऑफ एडला. अब एडला क्या है, कौन है, एक लड़की है. उसके कारण जो है वो रैट ट्रैप सेलर के अंदर का कुछ जो बेसिक अच्छाई है वो बाहर आता है. कैसे, विल सी. अब आयरन मास्टर को देखते हैं. आयरन मास्टर इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और बहुत फेमस है आयरन प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए. पहले वो क्या था, पहले ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर. हेस्टी एंड हॉटी इन टेम्परामेंट, दम फटाक से फैसला लेने वाला डेडिकेटेड बिजनेसमैन है. और लास्ट, ही इज़ नॉट अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर. वो कैरेक्टर को अच्छे से जज नहीं कर पाता है. कौन, आयरन मास्टर. सो द फर्स्ट कैरेक्टर जो जिसके हम सामने आए, द फर्स्ट कैरेक्टर द रैट ट्रैप सेलर, उसके बारे में बताया मैंने. सेकेंड वन द आयरन मास्टर. अब आते हैं आयरन मास्टर की डॉटर जो कि है एडला विल्मैंसन. एडला विल्मैंसन कैसी है उसके बारे में थोड़ा देख लें. शी इज़ काइंड, compassionate, shy, modest, humble and great host. So these are the characteristics. Okay, she is kind, compassionate, shy, modest, humble and a great host. With a keen perception and extremely sharp observation. उसके फादर को नहीं पता है हाउ टू जज, बट उसका ऑब्जर्वेशन कैसा है, बहुत शार्प है, बहुत कीन, बहुत बारीक से चीज़ों को देखती है, समझती है. She zeroes down on the fact that the peddler had robbed someone or was on the run. She could even judge. जब वो फर्स्ट टाइम इस रैट ट्रैप सेलर से, इसको पेडलर भी बोला गया है जो इसी तरीके से घूम रहा है, तो जब फर्स्ट टाइम वो पेडलर से मिलती है वो तभी समझ जाती है कि या तो इसने कुछ चोरी की है, एंड सेकेंड थिंग डेफिनेटली ही इज़ रनिंग फॉर समथिंग और फ्रॉम समथिंग. अब क्या है वो नहीं पता, बट शी अंडरस्टूड दिस मच दैट ही इज़ रनिंग. In a subtle way, she brings out the hidden but inherent goodness of the peddler by liberating him from philosophical trap of his own ranking. She is very persuasive और she truly deserve the title honorable. उसको honorable title अगर दिया जाए तो she deserves. अब we have understood that what is rat trap. नाउ ही इज़ द सेलर, द वैगाबॉन्ड. इसके लिए आप बहुत सारे नाम यूज़ कर सकते हो. रैट ट्रैप सेलर कह सकते हो, वैगाबॉन्ड कह सकते हो. वैगाबॉन्ड उसको कहते हैं जो दिन भर घूमता रहता है. आजकल जितने भी जिप्सीज, इसके लिए एक और वर्ड होता है जिप्सी, लेकिन जिप्सी के पास एटलीस्ट उसको पता होता है कि वो सर्च कर रहे हैं नॉलेज के लिए या फिर इधर उधर घूम रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए. लेकिन जो वैगाबॉन्ड है, रैट ट्रैप सेलर है, इसको ना तो नॉलेज चाहिए, ही इज़ सिंपली रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग. इसके लिए अनदर वर्ड जो पूरे टेक्स्ट बुक में यूज़ हुआ है दैट इज़ पेडलर.
तो आप इसकी कंडीशन देख ही सकते हैं, पुअर कंडीशन. नाउ rat trap seller, again I'm telling you, poverty stricken life, clothes in rags, sunken cheeks, hunger gleamed in eyes. सब कुछ उसके आँख में दिख रहा है. आँख में भूख है, बेकार सा चिक है, बेगिंग करता है, पिटी थिवरी करता है, और बनाता भी है और बेचता भी है. वॉट? रैट ट्रैप. नाउ उसके लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दिस. रैट ट्रैप सेलर, ट्रैम्प, vagabond, stranger, peddler. So we will come across peddler and rat trap seller often. Now it is unwanted, sorry for this, unwanted joy of rat trap seller. अब क्या वो सोचता है? सी entertaining thought, क्या क्या उसको आते हैं thoughts, क्या क्या उसके philosophies है. The whole world is a big rat trap with land and seas and cities and villages. उसको लगता है जिस तरह से रैट एक अपने बेट के लिए, मतलब अपने चारे के लिए घुस जाता है, उसी तरीके से जो होल वर्ल्ड है, सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, ये ओशन, ये पूरा का पूरा क्या है? एक रैट ट्रैप है. और हम लोग किस चीज़ के लिए भाग जाते हैं? रिच होने के लिए, जॉय के लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हीट, क्लोथिंग एट्सेट्रा. सो ही कंसिडर द एंटायर वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक रैट ट्रैप सेलर है जो किसी ओल्ड पर्सन से, उसका बियर्ड जो है वो वाइट है, कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ मांग रहा है. क्या स्टोरी है? विल सी. मीन्स नेक्स्ट कैरेक्टर. अभी तक हम किसका एनालिसिस किए? रैट ट्रैप सेलर को, आयरन मास्टर को, बिजनेसमैन है, और उसकी डॉटर एडला विलमैनसन को. नाउ अभी पिक्चर से we came across the point that someone is here, और who is he? He is someone old. तो old crofter. अब old crofter क्या है? ध्यान से देखो. A crofter was somebody who rented a small farm with a plot of land and living in a house on it. A tenant farmer who paid his tenancy with manpower instead of cash. Is that clear? अपने उसको शेयर करता है, उसको हम लोग crofter बोलते हैं. द क्रॉफ्टर दैट वी विल कम अक्रॉस, जिस क्रॉफ्टर के अक्रॉस हम लोग आएंगे, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लेट अस सी. ही इज़ लोनली, ही इज़ विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन. और क्या उससे मिस्टेक होता है या वो अच्छा करता है? लेट अस सी. ही वेलकम द रैट ट्रैप सेलर. जब रैट ट्रैप सेलर उसको दिखता है तो ही वेलकम्ड हिम. ही शेयर्ड सपर, वो उसके साथ सपर मीन्स खाना शेयर करता है. शेयर टोबैको, टोबैको शेयर करता है. एंड प्लेड मजलिस, मजलिस जैसे हम लोग रमी खेलते हैं, 29 खेलते हैं कार्ड, उसी तरीके से एक स्पेनिश नेम है गेम का. एंड लेट मी कट अ वेरी शॉर्ट जोक ओवर हियर. यू नो, जो सबसे बढ़िया रिश्ता होता है बच्चों, जो सबसे बढ़िया रिश्ता है, आई एम कटिंग अ जोक, पार्डन मी फॉर दैट. जो सबसे बढ़िया रिश्ता होता है वो क्या होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से तंबाकू बांटता है. सामने वाले को नहीं जान रहा होता है, कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर है, ठीक है, दो बिल्कुल स्ट्रेंजर एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मान लो कि कोई खैनी वाला है, उसके बगल में कोई खैनी वाला हो, तो एक आँखों में चमक आती है. और फिर जो वो शेयर होता है, तो वो मुझे लगता है कि जितना भी गीता, कुरान, कुछ भी पढ़ लीजिए, वो जितना भी बोला गया ना कि एकदम काम करो, फल की इच्छा मत रखो, वो एग्जैक्ट सेंस आपको तब मिलता है, निस्वार्थ भाव से बांटते हैं. तो यू कुड अंडरस्टैंड कि दो लोग यहाँ पे क्या क्या शेयर कर रहे हैं. ही इज़ वेरी लोनली. क्रॉफ्टर जो है, वो बैक टू चैप्टर, जो क्रॉफ्टर है, ही इज़ वेरी लोनली, ही इज़ विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन. और वो क्या करता है? ही वेलकम द रैट ट्रैप सेलर. और वो सपर मतलब लंच शेयर करता है, टोबैको शेयर करता है, और उसके साथ क्या करता है? मजलिस करता है. नाउ उसके साथ और कुछ कुछ कंडीशंस हैं. ही इज़ वेरी जेनरस विथ कॉन्फिडेंसेस. ठीक है, ये अपने काऊ रखता है, और लास्ट मंथ उसके पास 30 करोड़ आए हैं. जैसे हमारा रुपीज़ होता है, डॉलर होता है, पाउंड होता है, आउंस होता है, उसी तरीके से क्या होता है कि उस स्टेट का, उस प्रॉपर स्टेट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अभी कंट्री नहीं रेफर कर रहे हो, उस प्रॉपर कंट्री का, स्टेट का क्या है? करोड़ है. ओके, करेंसी. तो लास्ट मंथ उसे क्या मिला है? उसे 30 करोड़ मिला है. एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ दिस कि वो जो 30 करोड़ उसने लास्ट मंथ अर्न किया है,
वो उस 30 करोड़ को उसने कहाँ रखा है, ये क्या किया है इसने, ये दिखा दिया है किसको, रैट ट्रैप सेलर को। एक तो गेस्ट को इसने वेलकम किया, आइए हमारे घर पे आइए, और गेस्ट को वेलकम करने के बाद क्या किया, वो बहुत अच्छे से दिखा दिया कि देखिए भाई साहब हम यहाँ पे रखे हैं। एक्चुअली बोल के नहीं दिखाया, बट बहुत ही सिंपल पर्सन है, उसको लगा कि मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ तो चोरी तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो वो बोला नहीं कि मैं यहाँ रख रहा हूँ, बट उसके सामने ही उसने पैसे को वहाँ पे रखा। रैट ट्रैप सेलर तो आदत से लाचार, वो क्या करता है आप समझ ही रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि वो वहाँ से क्या किया, उस पैसे को उठा के ले भागा, चोरी कर लिया। कॉट इन द ट्रैप बेटेड बाय मनी, इस बार वो ट्रैप में फंस गया, और उसका बेट क्या था चारा, किसके चक्कर में फंसा, मनी। अब जस्ट इमेजिन, जब आप स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चला है कि वो एक जंगल में घूम रहा है, रैट ट्रैप सेल कर रहा है, घूम रहा है, फिलोसॉफिकल थॉट आ रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो रैट ट्रैप है, हम लोग फंस जाते हैं। और उस जंगल में ही वो एक क्रॉफ्टर के पास जाता है, और देयर ओनली व्हाट ही डज थेफ्ट, एंड नाउ ही इज़ मूविंग हेयर एंड देयर। डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं अपने लिए एक मुसीबत मोल ले लिया, एंड दिस थॉट विल ऑफन कम टू हिम, दैट these 30 crore these 30 crores became a headache for him, because he can't even get rid of that, he can't even throw that, and even if he will throw that, then people will be searching for him. So that 30 crore, that bit had become a headache for him. So we understand this. So after keeping that 30 crore and leaving the house without old crafter's permission, definitely he is not going to ask for the permission. So leaving the house without permission, he has created a trap for him. Now what he is doing? He is lost in big and confusing forest. Strangely path twisted and forth, means he is simply coming, he is moving in to and fro motion, not to and fro motion, but the same path are coming and down. Had been walking around the same path, and the whole forest like impenetrable prison. The entire forest seems like a prison to him. Now, see what conclusion we brought from here. The conclusion is that he is fooled and caught by the bait. Okay, and what he has increased for him, he has increased gloom and despair. सिर्फ दुख होगा, तो he has been fooled and caught by the bait. Is that clear? Now let us move further. These are the terms that are used in factory. Smelting किया जाता है, apply heat करता है, base metal को, rolling, forging. If you need, then I'm just keeping it here. You can take the screenshot, you can read it out. So these are the things that actually happen in any factory. अब फैक्ट्री में कहाँ से आगे बिग बिलोज ये सारा काम होता है, शोल्विंग चारकोल इनटू मो एंड द फर्नेस। नाउ वो टहलते टहलते जब एक जगह आवाज़ सुनता है, वो वहाँ पे जाता है, तो क्या होता है, उसको आयरन मास्टर मिलता है। अभी तक देखो स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, अब वो जो आयरन मास्टर जो बिजनेसमैन है जिसकी बेटी एडला है, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ होता है। आयरन मास्टर मिल पे आता है और वो इसको देखता है, और आयरन मास्टर रैट ट्रैप सेलर को देखने के बाद कुछ और समझ जाता है। उसको लगता है कि हम लोग जब कभी आर्मी में थे तो ये जो मेरा फेवरेट फ्रेंड था नील्स ओलोफ, वो वही है कॉमरेड। तो ये आयरन मास्टर उसको ये समझता है, और उसके बाद उसको क्या करता है, इन्वाइटेड हिम टू हिज मैनर हाउस, ही आस्क्ड हिम टू कम, कि तुम मेरे घर पे आओ। अब क्या होता है सुनो, वैगाबॉन्ड रिफ्यूज्ड, वैगाबॉन्ड जो है, जो रैट ट्रैप सेलर है, जो पेडलर है, ये रिफ्यूज़ करता। वाई? थिंकिंग दैट इट वुड बी लाइक वॉलेंटरी थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू लायंस डेन, वरिड अबाउट द 30 करोड़, कि ये तो मैं आसपास के लोकेलिटी में ही ठहरूंगा, ये कहीं चोरी हुई है, ये बिल्कुल हल्ला हो गया होगा पूरे जंगल में, सबको खबर होगी, तो अगर मैं इनके घर पे स्टे करता हूँ तो डेफिनेटली ये बात आज नहीं तो कल, ये मुझे मिस्टेकनली कोई और समझे है, बट डेफिनेटली ये बात आज नहीं तो कल पता चल जानी है। तो जब ये बात पता चल जाएगी तो डेफिनेटली मैं पकड़ा जाऊँगा। तो उसको लग रहा था कि अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो मैं लायंस डेन में खुद चला जाऊँगा।
अब एडला विलमेंसन, उसी वक्त क्या होता है कि एडला विलमेंसन शी अराइव्स एंड एज आई हैव मेंशन दैट शी इज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, शी अंडरस्टैंड्स, और उसके दिमाग में थॉट आता है दैट ही इज़ अफ्रेड, ही हैज़ स्टोलन समथिंग और ही हैज़ escaped फ्रॉम जेल. शी अंडरस्टूड दैट. ये देखते ही वो समझ गई कि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है उसके साथ. बट अब क्या होता है, शी अंडरस्टूड दैट, बट वो चाहती है कि उसे थोड़ा ईज करे. तो आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम, प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, you will be allowed to leave us just freely as you come. It never occurred to me that you would bother with me yourself. I will come at once. Her friendly manner gave confidence to Rat Trap Butler. ये उसको पता था कि ये डरा हुआ है, चोरी किया, कुछ किया, लेकिन ये उसको क्लियर नहीं था कि ही इज़ द सेम पर्सन और नॉट. उसको डाउट था तभी से, बट फिर भी शी परसुएडेड हिम कि आप चलिए हमारे साथ, और उस लड़की की बात को मना नहीं कर पाया और वो रैट ट्रैप सिलर उसके साथ चला गया. नाउ व्हाट हैपन्स we will see further in this video. Is that clear? We'll see further in this video in tomorrow's lecture. That's all for today. Thank you.